now under probability sampling technique we shall discuss cluster random sampling, and as you can see this is also known as area random sampling or cluster random sampling. So we shall discuss area or cluster random sampling. Suppose it is very difficult to consider every unit. The size of the population is more. Suppose you have to take sampling, you have to use the sampling technique for 1 crore people, or you have to take the data or sample from a area which is more scattered, more geographically scattered, जहाँ डाटा लेना कठिन हो या फिर हमको कई जगह से ज़्यादा डाटा लेना हो, इनफाइनाइट हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ये क्लस्टर सैम्पलिंग जिसको एरिया सैम्पलिंग कहते हैं और ख़ास के ज्योग्राफिकल रिसर्च में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो फर्स्टली वी शैल बी आउटलाइनिंग दिस लेक्चर, that is area or cluster sampling, and then we shall discuss onwards. So let us outline the lecture. So as you can see, area or cluster random sampling. What is the meaning of area or cluster sampling? We shall try to understand, and from the name cluster you can understand. So instead of individual we select cluster. How? Through example we shall be able to understand. What are the steps to be followed in the implication of cluster sampling? What are the requirements of cluster samplings? Cluster sampling and stratified sampling, how these are related and how they are different. Merits of cluster sampling, and limitations of cluster sampling. So this is all about the scope of the lecture. Now we shall be discussing from the very beginning. So we have already told that when geographically scattered data has to be collected, then this is the most applicable sampling technique, and of course it is a random sampling, so it comes under the category of probability sampling techniques. A cluster is an intact group as available in the field. जहाँ एक जगह क्लस्टर, एक जगह से ही पूरा आदमी उठा लिया. कैसे? देखो आप. In area or cluster sampling generally geographical division of territory, community, neighborhood, cities, states, etc. are located on a map, and then required number among them are selected randomly. एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, लेकिन पहले हम लोग लोकेट कर लेते हैं कि हमको लेना क्या क्या है और वो है कहाँ कहाँ, तब फिर डिसाइड करके कैसे लेना है उस पर विचार करते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर रिसर्चर्स डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल ग्रुप्स. मतलब ग्रुप्स को, इंडिविजुअल को नहीं, यहाँ ग्रुप को ही डिवाइड कर दिया जाता है, और जो ग्रुप डिवाइड किया उसी को क्या नाम देते हैं? क्लस्टर. एक जगह. और वैसे क्लस्टर का आप लोग लिटरल मीनिंग भी समझ रहे हैं. द रिसर्चर देन सेलेक्ट्स रैंडम ग्रुप्स विथ सिंपल रैंडम और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक. देखिए फिर इसका सिंपल रैंडम का हमने कहा था कि एक मेरिट था, उसका यूज यहाँ हो रहा है कि पहले हम लोग बांट दिया ग्रुप में, और यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं करेंगे, ग्रुप को ही सेलेक्ट करेंगे, क्लस्टर को ही सेलेक्ट करेंगे, और क्लस्टर डिसाइड कर लेने के बाद फिर रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे. इफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच सैंपल क्लस्टर आर सैंपल, then this is referred to as a one stage cluster sampling. मतलब एक जगह इतने लोगों को लेना है और सीधे उतने ही लोगों को ले लिया, तो इसको क्लस्टर सैम्पलिंग तो कहते ही हैं, लेकिन फर्दर उसको क्या कहते हैं? वन स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग. इफ ए सिंपल रैंडम
सब सैंपल ऑफ एलिमेंट्स इज सेलेक्टेड within each of these groups. This is referred to as a two-stage cluster sampling plan and so on. मान लीजिए कि यहाँ एक मैप पे यहाँ ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, और फिर एक क्लस्टर को नहीं सिलेक्ट किया, उस सब क्लस्टर में से कुछ कुछ लोगों को क्लस्टर को सिलेक्ट किया, तो उसको सेकेंड क्लस्टर की एप्लीकेशन की बात करता है और इसको फिर कहता है this is referred to as a two-stage cluster sampling plan and so on. There may be single stage, एक ही जगह ले लिया, ट्राइबल पॉपुलेशन है रांची का एक खास इलाका है, इसी को ले लिया। दूसरा है कि देख लिया कि नहीं ट्राइबल पॉपुलेशन तो रांची के आसपास है, हजारीबाग के आसपास है, आइडेंटिफाई किया और फिर दूसरा क्लस्टर उसमें से निकाला। लेकिन इंडिविजुअल की सिलेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा है। तो ये कहा कि देयर मे बी सिंगल स्टेज, टू स्टेज एंड मल्टी स्टेज सैंपलिंग प्लान, मतलब स्ट्रेटा ही लेना है लेकिन कई फेज में हम लोग ले सकते हैं। और एक बाद में हम लोग जो मल्टी फेज सैंपलिंग टेक्निक पढ़ेंगे, तो बहुत जगह क्या है कि क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक और मल्टी फेज सैंपलिंग टेक्निक को एक साथ ही मिला के दे दिया है। बहुत सारी किताबों में ऐसा किया है और कुछ सारी किताबों में अलग अलग दिया है, हम लोग अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। सो इसके बाद हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे। उसी तरफ आपका इशारा भी है क्लस्टर का कि सिंगल स्टेज, टू स्टेज एंड मल्टी स्टेज सैंपलिंग प्लान। सो देयर मे बी 2-3 टाइप्स ऑफ सैंपलिंग प्लानिंग इन क्लस्टर सैंपलिंग। बी जनरली यूज सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। मतलब जब फाइनाइट पॉपुलेशन हो, गिना जा सके या कम हो, या स्मॉलर पॉपुलेशन। अभी हम लोगों ने देखा भी था कि दीज आर द सैंपलिंग टेक्निक, दोज आर मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द सैंपल साइज इज लेस और व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए अभी हमने शुरू में कहा भी था कि बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको कई कंट्री से पॉपुलेशन लेना है, कई स्टेट से पॉपुलेशन लेना है, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 करोड़ लोगों को आप सेलेक्ट करके कोई रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जहां आपका इनफाइनाइट पॉपुलेशन है या नियर इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, तो दिस सैंपलिंग टेक्निक इज मोर यूजफुल। सो कि जब हमको फाइनाइट पॉपुलेशन है तो सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक को यूज करते हैं। लेकिन व्हेन द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, क्लस्टर सैंपलिंग इज मोर एप्लीकेबल। तो एक तो इसका मेरिट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आगे भी इसका मेरिट आएगा। इन फैक्ट एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज इनफाइनाइट एंड लिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी इसका एक मेरिट है कि यदि आपको लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो सिंपल रैंडम का तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, और इनफाइनाइट हो और लिस्ट भी अवेलेबल नहीं हो तो भी हम एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। When sampling of individual unit is not convenient for certain administrative regions and when the geographical distribution of units is scattered, cluster sampling is useful. मतलब क्लस्टर सैंपलिंग यूजफुल है कुछ कंडीशंस में, और कुछ कंडीशंस में हमने शुरू में भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से सारे यूनिट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सारे यूनिट का रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं, और फिर स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्लस्टर सैंपलिंग ज़्यादा यूजफुल है। तो फाइनाइट के लिए, स्कैटर्ड के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से यदि सारे डाटा अवेलेबल नहीं हो, सारी यूनिट का इंफॉर्मेशन नहीं हो, वैसे कंडीशन में एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग ज़्यादा यूजफुल है। दिस सैंपलिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन म्यूचुअली होमोजीनियस, देखिए बहुत टेक्निकल ढंग से वर्ड है, ध्यान से, व्हेन म्यूचुअली होमोजीनियस yet heterogeneous grouping are evident in a statistical population। मतलब कई तरह से, कई जगह से लोगों को सेलेक्ट करना है। आगे एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, ए ग्रुप ऑफ स्कूल्स,
स्कूल कॉम्प्लेक्स अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप देखेंगे 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट है। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स, और स्कूल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इट इज ए ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स। ए स्कूल कॉम्प्लेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर, एक जगह इतने सारे स्कूल्स, नॉट स्टूडेंट्स ऑफ ए हाई स्कूल बट द स्कूल्स ऑफ द स्टेट, country, region are enlisted to select 10% of schools for data collection। मतलब उसमें इंडिविजुअल को नहीं कंसीडर करते, स्कूल्स को कंसीडर करते। इट में भी कंट्री के विद इन कुछ स्टेट्स, स्टेट्स के विद इन कुछ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के विद इन कुछ ब्लॉक, और आगे यदि जाए तो विलेज एंड लाइक। और फिर हमने एग्जाम्पल दिया कि 10% स्कूल्स ऑफ द डाटा, नॉट इंडिविजुअल। If the researcher has to survey class 9, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, if the researcher has to survey class 9th school students of the country, the cluster sample will follow the random selection as states। मतलब इंडिया में से लेना है तो पहले हम स्टेट डिसाइड करेंगे, कौन कौन स्टेट लेंगे, 5 स्टेट लेंगे। अब स्टेट के बाद क्या लेंगे, स्टेट्स फ्रॉम कंट्री, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टेट्स। अब ये स्टेट में से डिस्ट्रिक्ट लेंगे, हर ऑब्वियस है 5 स्टेट दिया तो हर 5 स्टेट से 5 या 10 जो भी लेना है डिस्ट्रिक्ट लेंगे, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, और ब्लॉक से फिर विलेज। सो इफ द रिसर्चर हैज टू सर्वे क्लास 9 स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री, द क्लस्टर सैंपल विल फॉलो द रैंडम सिलेक्शन एज स्टेट्स फ्रॉम द कंट्री, district from the state, blocks from the district, schools from the blocks and the students from the schools to find the sample। लेना ये स्टूडेंट ही है, क्योंकि काम स्टूडेंट पे करना है, लेकिन फॉलो कैसे होगा, कंट्री में से 5 स्टेट, हर स्टेट जो 5 सेलेक्ट किए हैं उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट, उस जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में से निकल गया उस डिस्ट्रिक्ट में से, और ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के ही करेंगे, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट एट रैंडम सैम्पलिंग, दिस इज द बेसिक। और तब फिर अंत में उस स्कूल का, एक स्कूल का सारा स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल। तो इस तरह से जब हम कंट्री से स्टेट डिसाइड करके लेते हैं, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक, ब्लॉक से यदि विलेज है तो विलेज, और फिर स्कूल्स सेलेक्ट करके जब सैंपलिंग करते हैं तो इसी को क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं। व्हाट आर दी स्टेप्स, पहला स्टेप जो है, स्टेप्स टू फॉलो इन क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक आर एज, पहला डिसाइड द टारगेट ऑडियंस एंड द सैंपल साइज। किसको लेना है, ट्राइबल स्टूडेंट्स इंडिया का लेना है या फिर कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो ये पहला डिसीजन होगा, पहला स्टेप। टारगेट ऑडियंस किसको लेना है और कितना लेना है। सेकेंड स्टेप, क्रिएट एंड इवेलुएट सैंपलिंग फ्रेम्स। सैंपलिंग फ्रेम्स आप समझ रहे हैं, कहां से। डिटरमाइन ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब उसके भीतर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं उठाना है, और उस नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हों। अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह वाली बात कह रहे हैं वो भी उसी तरह इशारा कर रहा है। बाई अप्लाइंग रैंडम सिलेक्शन सेलेक्ट क्लस्टर। अब कहां से उठाएंगे, एंड एट द लास्ट क्रिएट सब टाइप्स बाई बाइफर्केटिंग इनटू 2 स्टेज एंड मल्टी स्टेज सब टाइप्स। अब कितने स्टेज का लेना है आपको, वो तो फिर आपको डिसाइड करना होगा, और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स, हमने कहा ना कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने क्या किया है कि ये क्लस्टर और मल्टी फेज सैंपलिंग टेक्निक को मिला दिया है, क्योंकि इसमें भी फेज तो है ही, लेकिन कुछ लोगों ने अलग किया है। तो कुछ बातें हम कहेंगे इस क्रम में कि क्लस्टर सैंपलिंग मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग। तो दोनों में बातें वही हैं। तो क्रिएट सब टाइप्स फॉर बाइफर्केटिंग इनटू 2 स्टेज एंड मल्टी स्टेज सब टाइप्स। और शुरू में भी हमने देखा कि कई स्टेज ले सकते हैं, 1 स्टेज, 2 स्टेज या मल्टी स्टेज। ये तो रिसर्चर को डिसाइड करना है कि कितने स्टेज को कंसीडर करना है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स।
when to use the cluster sampling. Rather, if you have to use the cluster sampling, what is needed? What are the requirements? Number one, cluster element be a heterogeneous as possible, that is, the population should contain distinct subpopulation of different types. मतलब क्लस्टर किस आधार पे आप करिए उसकी तरफ इशारा कर रहा है. दूसरा, each cluster be a small representation of the entire population. कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे ही हम क्लस्टर चूज करते हैं. नेक्स्ट, each cluster be mutually exclusive, अलग अलग, ये नहीं कि ओवरलैपिंग. नो क्लस्टर टू अकर टुगेदर, क्लस्टर का डिस्टिंक्ट बेस होना चाहिए, डिस्टिंक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उनका होना जरूरी है. अब बहुत लोग क्लस्टर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में कंफ्यूज करते हैं. हालांकि क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं, फिर भी दोनों डिफरेंट हैं. कैसे? लेट अस सी. क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बियर सम सुपरफिशियल सिमिलरिटीज, मतलब सिमिलरिटी है लेकिन वो सुपरफिशियल है. बट आर सबस्टेंशियली डिफरेंट, मतलब सुपरफिशियली वो सिमिलर लगते हैं लेकिन उनमें जो डिफरेंस है वो सबस्टेंशियल है, वो बाई चांस नहीं. रैंडम सैंपल इज ड्रन फ्रॉम ऑल स्टेटा इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल. स्टेटा में से निकालते हैं, मेल निकाल लिया, फीमेल निकाला, रूरल, वैसा क्लस्टर में नहीं करते हैं. सेलेक्टेड क्लस्टर्स आर स्टडीड आइदर इन सिंगल और मल्टीपल स्टेज. एक जगह से उठाया और उसमें फिर दूसरे स्टेज में करें या एक ही स्टेज में करें. इनफैक्ट, ये ध्यान से सुनना, इनफैक्ट इन क्लस्टर सैंपलिंग ओनली सेलेक्टेड क्लस्टर्स आर स्टडीड. जो क्लस्टर सेलेक्ट किए हैं उसी को स्टडी करते हैं. इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ए रैंडम सैंपल इज ड्रन फ्रॉम ईच स्टेटा, मतलब वहां रैंडमली पहले स्टेटा को डिवाइड करके हर में से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. और यहां क्या करते हैं? ओनली सेलेक्टेड क्लस्टर आर स्टडी. जिस क्लस्टर से ले लिया उसके बाहर हम नहीं जाते. मेरिट्स को देख लें. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग? इट इज इकोनॉमिकल व्हेन द कॉस्ट ऑफ मेजरिंग ए यूनिट इज रिलेटिवली स्मॉल. और खास के स्कैटर्ड पॉपुलेशन के लिए तो सो इकोनॉमिकल इन द सेंस मेजरिंग यूनिट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन पे यदि वो स्टडी हम करने जाएंगे तो सोचिए खर्च कितना होगा. इट इज़ टाइम सेविंग, क्योंकि क्लस्टर डिसाइड कर लेंगे तो ऑब्वियस है कि बहुत सारा टाइम यूनिट तक पहुंचने में जो लगेगा वो बचेगा. इट इज़ यूजफुल फॉर जोग्राफिकल एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अब मान लीजिए धान की खेती पे कोई स्टडी करनी है तो उसी सब एरिया की स्टडी होगी ना जहां धान ज्यादा मात्रा में हो, या फिर किसी मिट्टी के प्रकार पे कोई स्टडी हो रही है. इसीलिए हम ज्योग्राफी से ही एग्जाम्पल ले रहे हैं. एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है. ट्राइबल वगैरह का भी हमने एग्जाम्पल दिया. इट इज मोर यूजफुल व्हेन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट इज स्कैटर्ड. जैसे न्यूजीलैंड का है, बेस्ट ये जो है वहाँ प्लेन वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, या फिर हमारा भी जो हिली एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह वाला जो इलाका है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की स्टडी के लिए ये यूजफुल मेथड है. तो ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट इज स्कैटर्ड. इट इज़ मोर यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट. ये तो शुरू में ही हमने कहा कि ज़्यादा, क्योंकि निकालना आसान है, स्टेटा निकालना आसान है. हम लोग यूनिट को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, स्टेटा को कंसिडर कर रहे हैं. इट इज़ मोर यूजफुल when instead of individual the selection of group or cluster is needed. obvious है, इंडिविजुअल की जरूरत ही नहीं, क्लस्टर सेलेक्ट करना हो तो ऐसे केस में तो इसी को करेंगे, कुछ उठा लिया. इट इज यूजफुल व्हेन द लिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट. अब यूनिट ही नहीं है तो क्या करेंगे? आपका सिंपल रैंडम तो होगा नहीं, सिस्टमेटिक में भी चाहिए. आखिर पहला सेलेक्ट कर लेंगे लेकिन बाद में तो चाहिए ना. स्टेटा बनाने में भी चाहिए, स्टेटा ठीक कर लेंगे लेकिन कोई लिस्ट तो चाहिए ना. इसमें लिस्ट नहीं है तो भी चाहिए. इट इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल सर्वेज ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल बिहेवियर्स व्हिच कैन बी इजीली कंडक्टेड बाय एरिया सैंपलिंग.
अब देखते हैं ना उठा के, अभी देखो यूपी का में इलेक्शन है तो यूपी के ही इलाके से ले रहे हैं। उसमें हो सकता है कि मुस्लिम लोगों को जानना है मुस्लिम बाहुल्य में मुस्लिम का क्या एटीट्यूड है, हिंदी बाहुल्य में मुस्लिम का क्या एटीट्यूड है, या इस तरह की जो स्टडी है जहाँ एजुकेशन ज़्यादा है जिस एरिया में, उस लोगों का एजुकेशन के प्रति या वीमेन एजुकेशन के प्रति क्या है। जो ट्राइबल ज़्यादा एजुकेटेड है वो उनकी सोच कैसी है महिलाओं की शिक्षा के बारे में, महिलाओं के एम्पावरमेंट के बारे में। तो इस तरह की स्टडी के लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया कि पॉलिटिकल, अभी देख रहे हो कि बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बनारस कभी पहुंच गया वहाँ ले रहा है, कभी यूपी, चूँकि अभी इलेक्शन होना है इसलिए इसमें एग्जाम्पल भी उसी का दे रहे हैं। रिलीजियस, अब रिलीजियस जहाँ जिस तरह का रिलीजियस सेंटिमेंट्स फीलिंग्स है वही ना, एंड सोशल बिहेवियर्स। अब ट्राइबल का बिहेवियर करना है या फिर मिथिलांचल की शादी के बारे में स्टडी करनी है, तो वो सब चीज़ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए ये सैम्पलिंग टेक्निक ज़्यादा यूज है। इट इज़ मोर यूजफुल व्हेन पब्लिक ओपिनियंस पोल्स, पब्लिक ओपिनियन पोल्स इलेक्शन में देखते हैं ना इजली अभी, क्योंकि इसमें कोई जहाँ से मन हो ले लीजिए, कुछ आप अपना स्टेटा एक बना लीजिए, कुछ उसका क्लस्टर बना लीजिए और फिर इट इज़ यूजफुल व्हेन लार्ज जोग्राफिकल एरिया टू बी कवर्ड, बहुत ज़्यादा एरिया लेना है। मान लीजिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में से हमको 10,000 आदमी को सिलेक्ट करना है, तब तो फिर सिंपल रैंडम से तो संभव ही नहीं है, वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम रखेंगे, लेकिन इसमें क्लस्टर लेंगे। किसको लेना है, कुछ कंट्री ऐसा होगा, कुछ कंट्री ऐसा होगा, कुछ कंट्री ऐसा होगा, और फिर उसके बाद फिर कंट्री के भीतर स्टेट, स्टेट के भीतर फिर डिस्ट्रिक्ट एंड लाइक दैट। So it is useful when large geographical area to be covered. Besides its merits, it has so many limitations as well. What are the limitations? Let us see. And this is the last part of the lecture. When sampling unit is an individual element, this method is not appropriate. क्योंकि क्लस्टर की बात ही करता है तो यूनिट की बात तो करने की जरूरत ही नहीं है, और उस कंडीशन में तो ये एप्लीकेबल ज़्यादा नहीं। इसको यदि लगाना चाहेंगे तब तो फिर काम ही कंप्लीट नहीं होगा विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट यूजफुल व्हेन द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, फाइनाइट के लिए बहुत सारे अदर सैम्पलिंग टेक्निक है जो ज़्यादा यूजफुल है। इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक डिग्री ऑफ सैम्पलिंग एरर इज यूजुअली हाई। चूंकि रैंडमनेस यूनिट वाइज फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्लस्टर वाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है जो यूनिट और क्लस्टर के बीच का डिफरेंस होगा, रिप्रेजेंटेटिवनेस की जो बात आएगी, तो कुछ तो सेक्रीफाइस होगा। उसी तरफ इशारा कर रहा है कि सैम्पलिंग एरर इज यूजुअली हाई, क्योंकि सारे यूनिट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्लस्टर को कंसीडर कर रहे हैं। इन दिस टेक्निक वी कैन नॉट फाइंड ए करेक्ट वे टू फाइंड ईच सैम्पलिंग यूनिट इन एन एरिया और इक्वल साइज। जैसे किसी में हमने देखा इंटरवल वगैरह कंसीडर कर रहे हैं, किसी में सारे इंडिविजुअल को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, तो ये सब चीज तो इसमें हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। इन दिस टेक्निक इट इज डिफिकल्ट टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इंक्लूडेड इन वन क्लस्टर मे नॉट अपीयर इन अनदर क्लस्टर, वन मे मूव फ्रॉम वन क्लस्टर टू अदर क्लस्टर। अब मान लीजिए आप कई जगह से पॉपुलेशन लेते हैं, आप अभी आपने एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से लिया और उस लोकेलिटी का आदमी जो दूसरी लोकेलिटी में भी रहता है, कुछ किसी ओकेजन पे या किसी 10 दिन के बाद उस जगह से दूसरी जगह चला गया, तो 2 जगह उसके शामिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये जल्दी जल्दी आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन जितना देर करते जाएंगे डाटा इस लोकेलिटी और उस लोकेलिटी में करने का, तो संभव है इस लोकेलिटी का आदमी अपने दूसरी लोकेलिटी में रहता हो तो वहां मूव कर जाए, तो 2 बार एक ही आदमी अपीयर हो जाए, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। सो इन दिस टेक्निक इट इज डिफिकल्ट टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इंक्लूडेड इन वन क्लस्टर मे नॉट अपीयर इन अनदर क्लस्टर, one may move from one cluster to another cluster. So in this way, under the head probability sampling technique, we discussed area or cluster random sampling. This technique is most useful for geographical studies. तो इसको geographical और या agriculture के फील्ड से भी निकला हुआ माना जाता है। और अभी हमने बताया कि क्लस्टर सैम्पलिंग
और मल्टी फेज सैंपलिंग, चूंकि इसमें भी फेज का कंसेप्ट है, आर सिमिलर टू ईच अदर, बट वी शैल डिस्कस द मल्टी स्टेज sampling technique. Of course, in the discussion of multi-stage sampling technique, the word cluster sampling will also occur, but we shall discuss separately. So in this way we have come to know that if the population is infinite, if the area is scattered, geographically scattered, and if we have to consider the population in a large number, जैसे वर्ल्ड की स्टडी सिंपल रैंडम से नहीं हो सकती, बट दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग. सो इन दिस वे वी हैव come to know what is the cluster sample, what are the important steps to be taken care of in the cluster sampling, and what are its merits and what are its limitations. So this is all about cluster sampling technique, which is also known as area sampling technique. Thank you very much.